ناظرین، پاکستان چائنیز ہتھیار استعمال کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات ہونے والی ڈاگ فائٹ نے چائنیز ہتھیاروں کو باقی دنیا پر برتری اور پاکستانی پائلٹس کی مہارت کی دھاک بھی دنیا بھر پر بٹھا دی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کون کون سے چائنیز ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور ان کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ کسی کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہماری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اس کے بعد کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ پاکستان کے پاس موجود چائنیز ہتھیار اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ عالمی میڈیا میں ان ہتھیاروں کے بھرپور چرچے ہو رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران جب انڈین طیارے تباہ ہوئے تو دنیا بھر کی نظریں چائنیز ہتھیاروں پر لگ گئیں۔ چائنیز سٹاک مارکیٹ میں چینی دفاعی کمپنی کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ خاص طور پر ان کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ ہوا جو پاکستان کو ہتھیار اور لڑاکا طیارے فراہم کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک J-10C لڑاکا طیارہ بنانے والی کمپنی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن بھی شامل تھی۔ CNBC کی 8 مئی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہانگ کانگ میں لسٹڈ J-10C طیارے بنانے والی کمپنی چینگڈو کے شیئرز کی قدر 6% جبکہ شینزن میں 16% تک بڑھی، اور یہ اس کمپنی کے شیئرز کی قدر میں گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سب سے بڑا اضافہ تھا۔ یاد رہے کہ 8 مئی وہی دن تھا جس سے صرف ایک روز پہلے پاک بھارت طیاروں میں شدید جھڑپ ہوئی تھی۔ اس جھڑپ میں پاکستانی حکام نے انڈیا کے آپریشن سندور کے جواب میں رافیل سمیت متعدد انڈین طیارے گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا کی کئی خبروں میں ان طیاروں کے مار گرائے جانے کی کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے۔ دنیا کے لیے سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ چین نے گزشتہ 4 دہائیوں میں کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی۔ اس کے زیادہ تر طیارے پرانی سوویت ٹیکنالوجی سے متاثر ہو کر بنائے گئے تھے۔ پھر چائنیز ہتھیار اتنے کامیاب کیسے ثابت ہوئے کہ وہ جدید ترین فرینچ ٹیکنالوجی پر بھی حاوی ہو گئے؟ اس کی وجہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ چین کئی دہائیوں سے لگاتار اس کوشش میں تھا کہ وہ اپنی فوجوں کو جدید سے جدید ترین ہتھیار سے لیس کرے۔ اس نے اپنی فوج کو مضبوط بنانے اور جدید ترین ہتھیار تیار کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، لیکن اس خطے میں ایک اتحادی کی بھی ضرورت تھی، خاص طور پر بھارت کے خلاف۔ یہ اتحادی اسے پاکستان کی شکل میں میسر بھی آ گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان شروع میں امریکہ کا اتحادی تھا اور امریکہ سمیت مغربی ملکوں سے جدید ہتھیار خریدتا تھا۔ ان میں F-16 اور میراج طیارے بھی شامل تھے۔ تاہم پاکستان اور مغرب کے تعلقات جلد ہی خراب ہونا شروع ہو گئے۔ امریکہ نے بھارت اور دیگر لابیز کے دباؤ میں آ کر پاکستان کو جدید ہتھیاروں کی فروخت روک دی، بلکہ پاکستان پر شدید پابندیاں بھی عائد کرنا شروع کر دیں۔ ہر ہتھیار کی خریداری کے ساتھ مطالبات کی لمبی چوڑی فہرست بھی تھما دی جاتی تھی۔ ان میں ایسے مطالبات بھی تھے جو پاکستان کے لیے ناقابل قبول تھے، جیسا کہ انڈیا میں ایسی باتیں مشہور تھیں کہ پاکستان کو جو امریکی ہتھیار دیے جاتے ہیں وہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ہیں، پاکستان انہیں بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب 2019 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی جھڑپ ہوئی اور پاکستان نے ایک بھارتی B-1 مار گرایا، اس کے پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا گیا اور پاکستان میں چائے پلا کر واپس بھارت بھیج دیا گیا۔ لیکن بھارتی حکومت نے بہت واویلا کیا کہ پاکستان نے اس لڑائی میں F-16 طیاروں کو کیوں استعمال کیا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں گرنے والے میزائلوں کے ٹکڑوں کو میڈیا کے سامنے پیش کر کے یہ دکھانے کی بڑی کوشش کی کہ پاکستان نے اس لڑائی میں F-16 طیارے استعمال کیے ہیں۔ یہ اقدام بھارت کے بقول پاکستان اور امریکہ کے درمیان F-16 معاہدے کی بہت بڑی خلاف ورزی تھی۔ یعنی بھارت کا دعویٰ تھا کہ پاکستان کا انڈیا کے خلاف F-16 استعمال کرنا غلط تھا، حالانکہ یہ طیارے پاکستان کی ملکیت ہیں اور پاکستان انہیں جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن بھارت اس حقیقت سے مسلسل انکار کرتا رہا۔ بھارت کے اس دباؤ اور امریکہ کی طرف سے جدید ہتھیاروں کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان آخرکار اپنے دیرینہ دوست چین سے مدد لینے پر مجبور ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ چین اپنے دوست ملکوں کا خیال رکھتا ہے اور امریکہ کی طرح ان پر سخت شرائط مسلط نہیں کرتا، اس لیے پاکستان نے چین سے مستقل طور پر ہتھیاروں کی خریداری شروع کر دی۔ پھر ہر گزرتے برس کے ساتھ اس خریداری میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ چائنا اب تک اپنے تیار کردہ
करदा बहुत से हथियार पाकिस्तान को भी फराहम कर चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अदादोशुमार के मुताबिक चीन ने गुज़िश्ता 5 बरसों में यानी 2020 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान के दरामदशुदा हथियारों का 81% हिस्सा फराहम किया है। यानी पाकिस्तान ने इस दौरानिये में जितने हथियार इंपोर्ट किए हैं इनमें से 81% यानी 81% सिर्फ चीन से खरीदे गए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान ने सन 2015 से सन 2019 और 2020 से 2024 तक हथियारों की दरामद में यानी इंपोर्ट में 61% का 61% का इजाफा किया है। जाहिर है इस इजाफे की बड़ी वजह इंडिया के साथ मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी है। खास तौर पर 2019 में जब इंडियन तैयारों ने पाकिस्तानी इलाकों पर हमले किए तो पाकिस्तान भी जवाब देने पर मजबूर हुआ। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने अपने हथियारों की खरीदारी तेज कर दी। खास तौर पर चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल की कोशिशें तेज कर दी गईं। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से जो हथियार हासिल किए इनमें जदीद लड़ाका तैयारे, मिसाइल, रेडार और फिजाई दिफाई निज़ाम शामिल हैं। पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले कुछ हथियारों में भी चीन का किरदार है। ये या तो चीनी कंपनियों ने तैयार किए हैं या फिर इनमें किसी हद तक चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। वैसे आपको ये भी बताते चलें कि हथियारों की खरीदारी में इंडिया भी किसी से कम नहीं है। दरअसल भारत दुनिया में असलहा दरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। ताहम स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के मुताबिक सन 2015 से सन 2019 के दौरान और इसके बाद 2020 से 2024 के दौरान भारत की तरफ से हथियारों की दरामद में 9.3% की कमी हुई है। पिछले 5 सालों में इंडिया ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से दरामद किए हैं। ये इसके कुल हथियारों की इंपोर्ट का 36% 36% बनते हैं, जो कि सन 2015 से 2019 के दरमियान ये इंपोर्ट 55% तक थी, जबकि इससे बहुत पहले 2010 से 2014 के दौरान 72% हथियार खरीदे गए थे। यानी इंडिया की रूस से हथियारों की दरामदात इंपोर्ट मुसलसल गिरती चली गई है। इसी तरह फ्रांसीसी हथियारों की बरामदात में अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 28% इंडिया को मिला है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट के आर्म्स ट्रांसफर प्रोग्राम के एक सीनियर रिसर्चर सैमन विजमन कहते हैं कि इस खित्ते में ज्यादातर हथियारों की खरीदारी चीन से खतरे के पेश नजर की जाती है। यानी भारत और कुछ दूसरे ममालिक चीन को सामने रखकर जदीद हथियार हासिल करते हैं। बहरहाल अब टॉपिक पर वापस आते हैं कि पाकिस्तान के पास कौन से चाइनीज हथियार हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताउन दरअसल बहुत पुराना है। ये सन 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद शुरू हुआ था। इस वक्त भी अमरीकी हुकूमत ने तोता चश्मी का मुजाहरा करते हुए अमरीकी हथियारों की पाकिस्तान को फरोख्त बंद कर दी थी। इस वजह से बाद में पाकिस्तान को 71 की जंग में भी नुकसान उठाना पड़ा था। ताहम अमरीकी पाबंदियां एक तरह से नेमत ही साबित हुई और उन्होंने पाकिस्तान को चीन की तरफ धकेल दिया। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान ने सन 1963 में इस मुआहिदे पर दस्तखत किए जिसके तहत सरहदी तनाज़ात को हल किया गया और 1966 में यानी 1966 में चीन की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी मदद का आगाज हुआ। चीन ने तवील मुद्दती अस्करी और सफारती ताल्लुकात की बुनियाद रखते हुए पाकिस्तान को लड़ाका तैयारे, टैंक और तोपखाना फराहम किया। ये शराकतदारी सर्द जंग के बाद मजीद वसी हो गई जब पाकिस्तान ने अमेरिका की जगह चीन को अपने अस्करी हथियारों का बुनियादी सप्लायर बना लिया। आज पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में चीनी हथियार मौजूद हैं। अब हम आपको इन हथियारों की तफसील बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लड़ाका तैयारों की। पाकिस्तान इस वक्त चीनी साख्ता J-10C और चीन के ताउन से तैयार होने वाले JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे इस्तेमाल करता है। J-10C लड़ाका तैयारे को चीनी कंपनी चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है, जबकि JF-17 थंडर चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। इन दोनों तैयारों ने भारत के साथ होने वाली हालिया फजाई झड़प में भी अपनी सलाहियतों का लोहा बड़ी कामयाबी से मनवा लिया है। इससे पहले चीन की तरफ से पाकिस्तान को J-6 और J-7 तैयारे भी फराहम किए गए थे। ये रशियन मिग तैयारों के चाइनीज वर्जन्स थे। पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक इन दोनों तैयारों को कामयाबी से इस्तेमाल किया,
ताहम अब ये तैयारे ग्राउंड किए जा चुके हैं। तैयारों के बाद बात करते हैं मिसाइलों की। इनमें आजकल चाइनीज मिसाइल PL-15 के चर्चे हैं। 12 मई को इंडियन फौज ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मिसाइल का मलबा दिखाया था। इंडियन फौज का दावा था कि इस मिसाइल को अपने हदफ को निशाना बनाने से पहले ही कामयाबी से मार गिराया गया था। हालांकि इस दावे की किसी आजाद मीडिया ने तस्दीक नहीं की। ये सिर्फ भारत का एक दावा ही है। बहरहाल PL-15 चीन का बनाया हुआ एक इंतहाई जदीद तरीन और तेज रफ्तार हाई टेक मिसाइल है। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना की तरफ से तैयार करदा PL-15 रेडार गाइडेड फिजा से फिजा में तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल है। इसे खास तौर पर J-10C और JF-17 थंडर तैयारों में नस्ब करने के लिए ही दिया गया है। जब J-10C तैयारों की पाकिस्तानी फजाइया में शमूलियत हो रही थी तो इस वक्त भी इस बात की तस्दीक की गई थी। इस वक्त एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने कहा था कि ये तैयारे PL-15 मिसाइलों से लेस हैं। PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन 145 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने यही मिसाइल इंडियन तैयारों खास तौर पर राफेल को गिराने के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से सफर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दुश्मन के तैयारों को खुद ब खुद डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और मार गिराने की सलाहियत मौजूद है। ये दुश्मन तैयारों के फिजाई दिफा के निजाम को भी नाकारा बना सकता है और इसमें ये सलाहियत भी है कि इसे जाम नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ड्रोन्स की। दिफाई शोबे में अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन्स भी खरीदे हैं। इनमें चीन से हासिल करदा ड्रोन्स खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। पाकिस्तान चीन से विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स हासिल कर रहा है। ये जदीद तरीन ड्रोन्स कम से कम 10 किलोमीटर दूरी से मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अब बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की। इस वक्त पाकिस्तान के पास चीनी साख्ता HQ-9, LY-80 और FN-6 जैसे फिजाई दिफाई निजाम मौजूद हैं। इनमें से HQ-9 को पाकिस्तान ने सन 2021 में अपने अस्करी हथियारों में शामिल किया था। इस फिजाई दिफाई निजाम को रूस के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हम पल्ला समझा जाता है। HQ-9 120 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक तैयारों और मिसाइलों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब बात करते हैं नेवी की और सबसे पहले हम बात करेंगे आबदोजों की। पाकिस्तान चीन की मदद से जदीद तरीन बहरी जंगी जहाज और आबदोजें तैयार कर रहा है, यानी इनकी टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। इनमें हंगोर क्लास की 8 आबदोजें शामिल हैं। इन आबदोजों में से 4 पाकिस्तान में ही तैयार की जाएंगी। टैंकों की बात की जाए तो आपने अल खालिद टैंक का नाम सुना होगा, जो पाकिस्तानी फौज का जदीद तरीन टैंक है। इस टैंक की तैयारी में भी दोस्त मुल्क चीन का पूरा ताउन मौजूद है। ये एक निस्बतन हल्का टैंक है जिसका वजन 46 टन है। इसके मुकाबले में जर्मन साख्ता लेपर्ड 2 और अमरीकी साख्ता M1 एब्राम्स टैंकों का वजन 60 टन तक होता है। अल खालिद टैंक की रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा है। ये कई किलोमीटर दूरी तक गोले फायर कर सकता है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। पाकिस्तान इनके अलावा भी कई तरह के हथियार चीन से हासिल करता है। इन हथियारों की इंपोर्ट ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी बहुत से फायदे पहुंचाए हैं। माहिरीन के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की जानिब से चीनी हथियारों के इस्तेमाल की खबरों और इनके नतीजे में इंडियन फौज को पहुंचाए जाने वाले नुकसानात ने मुमकिना तौर पर आलमी मंडी में भी चीनी साख्ता अस्करी साजो सामान में दिलचस्पी पैदा की है। हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे में चीन को फौजी साजो सामान की खरीदारी के बड़े ऑर्डर्स भी मिलने लगें। मगर क्या इंडिया के साथ हालिया झड़प के बाद पाकिस्तान का चीनी हथियारों पर इन्हिसार मजीद बढ़ेगा? ये भी एक अहम सवाल है। एक साबिक अमरीकी ओहदेदार प्रोफेसर जोशुआ टी वाइट के मुताबिक इस बात का पूरा इम्कान है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया बहरान पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मजीद गहरा करेगा। इनका कहना है कि पाकिस्तान का बतौर डिफेंस सप्लायर चीन पर इन्हिसार बढ़ेगा। माहिरीन के मुताबिक इब्तदाई इशारे यही मिले हैं कि चीनी साख्ता तैयारों और फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों ने इंडिया के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। माहिरीन का कहना है कि किसी भी दिफाई सिस्टम के मौसर होने का इन्हिसार इस बात पर होता है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। कमांडर्स ने रूल्स ऑफ इंगेजमेंट क्या बनाए हैं
और इनको इस्तेमाल करने वाले एहलकारों को तरबियत कैसे दी गई है। पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल पाक फौज के लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि तवील अरसे तक चाइनीज हथियार इस्तेमाल करने की वजह से पाक फौज को इन हथियारों के मुतल्लिक ज्यादा मालूमात मिल चुकी हैं। इसके जवान चाइनीज टेक्नोलॉजी को पहचानते हैं और इसे अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करने में भी महारत हासिल कर चुके हैं। J-10C हो या JF थंडर, ये दोनों चीनी साख्ता तैयारे हैं, इसलिए इनमें चीनी साख्ता हथियार यानी मिसाइल वगैरह ही ज्यादा बेहतर तौर पर काम करेंगे। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में चीन के साथ मिलकर इन सिस्टम्स को ज्यादा जदीद और बेहतर बनाने पर काम कर रहा होगा। खास तौर पर भारत के साथ हालिया झड़प के बाद दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज अपने अपने हथियारों और सिस्टम्स, उनकी खूबियों और खामियों को देख रही होंगी। दोनों ममालिक ये भी देख रहे होंगे कि मुस्तकबिल में इन्हें कौन से नए सिस्टम्स चाहिए और किस पुराने सिस्टम को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी हथियारों के मगरबी हथियारों के मुकाबले में कम कीमत और ज्यादा मौसर होने से मुतल्लिक भी आलमी सतह पर कयास आराइयां जारी हैं। जहां चीन को इस तनाज़े में एक फायदा पहुंचा कि इसके हथियारों की कारकर्दगी से मुतल्लिक बातें हो रही हैं, वहीं इस पर भी बात हो रही है कि इन्हें इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा था, यानी पाक फिजाइया की सलाहियतों का लोहा भी माना जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पास चीन के साथ साथ अमरीकी और दीगर ममालिक के हथियार भी मौजूद हैं। इन हथियारों को भी पाकिस्तान चाइनीज हथियारों के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को चाइनीज हथियारों की फराहमी को कई दिफाई माहिरीन चाइना और वेस्ट के दरमियान तसादुम के तौर पर भी देखते हैं। उनका कहना है कि अगरचा भारत से जंग पाकिस्तान लड़ रहा था, लेकिन मगरबी ममालिक के हथियारों के खिलाफ चीन के हथियारों को आजमाने का वक्त था, यानी राफेल के मुकाबले में J-10C की आजमाइश थी। शायद ये पहला मौका है कि जंग के दौरान PL-15 मिसाइल भी देखा गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर हमने आपके लिए और भी कई तरह की दिलचस्प वीडियोस बना रखी हैं, जैसा कि चीन और भारत में से कौन ज्यादा ताकतवर है, क्या पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से भारत को 3 फ्रंट वॉर का खतरा है या नहीं। ये वीडियोस इन लिंक पे क्लिक करके आप इस बारे में जान सकते हैं।